Good morning, friends. After this inaugural session, I welcome you all to the first technical session. And to deal with the topic, we have a very towering personality, Dr. C. Girish Ahuja ji. And it's a proud privilege for me to offer an introduction of our today's learned faculty who is well known to us. Dr. Girish Ahuja ji is a highly respected and prominent figure in the field of direct tax laws in India. With decades of experience in taxation, he is recognized as the leading authority on this subject matter. Dr. Girish Ahuja holds PhD in taxation and is a chartered accountant with rank at both intermediate and final level. His academic qualification combined with his extensive practical experience have made him a trusted expert in the tax matter. He is the author of numerous widely used textbooks and reference books on the direct tax laws in India. His books are considered standard reference material for students, professionals, and practitioners in the field of taxation. Dr. Ahuja ji has been a sought-after speaker and a trainer for various professional organizations, educational institutions, and corporate entities. He has conducted countless seminars, workshops, and lectures on direct tax laws across the nation. His contribution to the tax education and advocacy have entrusted him accolade and recognition from both the government and the professional bodies. Dr. Girish Ahuja ji's key message revolves around simplifying tax tax laws and making them accessible to the broader audience. He emphasizes the importance of staying updated with tax regulations and compliance while advocating for the clarity and transparency in tax systems. Dr. Girish Ahuja ji's expertise and dedication to the field of direct tax laws have made him a respectable figure among the tax professionals, students, and individuals seeking clarity on tax matters. His ability to break down complex tax concepts into understandable languages have been instrumental in promoting tax literacy in India. With this, I would request our Vice Chairperson, Sunil Sanghvi sir, to welcome with a book, with a memento. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Vice Chairman of the Ahmedabad branch, Sunil Sanghvi ji, CA Rinkesh Patel ji, the other dignity, all of the others, Abhinav abhi ja raha hai Balmer, they are all coming back. I know that they are all coming back. They have gone to see off the president and all that. Ladies and gentlemen, if you have any question, please stop me there and then. I'll answer your all questions, whatever you have in your mind. I'm the culprit also for this, let me tell you. I didn't know that this is going to happen. I remember when we were redrafting the law, at that particular time I told them 11, 12, 30, 10, 23C. There are so many things missing. They are not aligned. 1023C, there were so many things. At one time, even if you filed a return late under section 1023C, there was nothing. You could get the exemptions, whereas it was not possible under 11, 12, 30. Even for accumulating under 11.2, 15%, I mean more than 15%, there was no requirement to file Form 10 under 1023C. There was no requirement. The only thing you had to keep the money under 11.5. Whereas there was a requirement under 11.2 to file Form 10. And so many other things were there. I told them, what is this? One thing more. I told them this is one problem is that whenever there is a scrutiny case, they ask for original certificate of your registration or approval. They ask for it. And we don't have that. Maybe it is 20 years old, 30 years old, I got a registration and that is missing or I have lost it. So what should we do it? I said, do one thing. Let everybody apply for fresh registration or approval one time. Don't ask any question. They will quote their registration number or approval number, allot them unique ID like this is. Give them the number, that becomes a permanent number. There will be absolutely no problem in that. और वो भी रहेगा, उधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा. मुझे क्या पता था, ईद गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ जाएंगे. I never thought that they will change the law. I told them, allow them to apply once again.
लेकिन मुझे क्या पता था, वो कहता कि 5 साल बाद हर बार अप्लाई करना पड़ेगा. That I never told them. I said it is a permanent registration, permanent approval. Why should we apply again and again? But now they have said you will have to apply every 5 years. Or every 5-year application, whenever you apply, the amount of documents you will have to submit. And it will be like fresh registration. Absolutely fresh registration. It is not going to be. So that was the only point where the difficulty. Thereafter, they engaged, why should I say engaged? Some officer was there who was told to look into the alignment of section 1023C and section 11.12.30. He took 2 years, and still there are so many mistakes. He took 2 years to align those two laws. After allowing, I said, what is the need when you have aligned? Forget about 1023C, have only one section, 11.12.30, merge them. बोले अगले साल करेंगे. अब अगले साल आज गया, अगले वाला देखेगा, हम तो जा रहे हैं. What is the need when you have the same provisions under 1023C, IV, VV, IV, IA, then 11, 12, 13 are also same. So merge them. Why should you have separate one? 2 साल वो लगे, तो 2 साल शायद इसमें लग जाए मर्ज करने के लिए. I'm not talking about 1023C, 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE. ये सेक्शन अलग रहेंगे. I'm talking about 1023C IV, section 10 clause 23C. सब सेक्शन नहीं है. सेक्शन 10 में सब सेक्शन नहीं है. तो हमें आदत पड़ी हुई है ना सेक्शन के बाद सब सेक्शन बात करने की. जी नहीं. There are many sections which do not have subsections. If the section is common, generic, name of the section is generic, we don't have subsection. We start with section, clauses. Section 2, definition. Definition does not have a subsection because whenever there is a subsection, it talks about the section. Whenever there is a clause, it talks about the subsection. तो वहाँ नहीं है. वहाँ पर clauses होते हैं. Section 10, clause 23C, subclause 3 IAB, University Educational Institution, financed wholly or substantially financed by the government. Hospital institution wholly substantially financed by the government. ये change नहीं करना है. यहाँ पर तो requirement ही कोई नहीं है. You just have to file a return of income. There is no requirement of audit. There is no requirement of 85%. There is no requirement of corpus or non-corpus. है ही कोई requirement नहीं. And even 1023C3 IAD, AE, 5 crore, up to 5 crore. There is no requirement. Absolutely no requirement except return of income. कोई चीज नहीं है, कोई audit नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ return file करना है. This you know. So I don't want them to change this. But at least this could have been merged. अभी भी एक difference है दोनों में मैं आपको बताऊं. Form 9A, that is clause 2I of explanation to section 11. जो form 9A भरना है. What is that form 9A? That there is the income which has accrued but not received. Income which has accrued but not received. I can give an undertaking that I'll apply this income in the year in which I receive it or year following that. क्योंकि आई नहीं है income, तो खर्च कैसे करूं? Income accrue हो गई because we are following mercantile system of accounting, but it is not received. I'll give an undertaking in the form 9A, I'll apply this income in the year in which I receive it or year following that also. And second, for any other reason I can't spend it. For any other reason I can't spend it, I'll say I'll spend it next year. हम करते ही रहे. जब भी देखा नहीं खर्च हुआ, फॉर्म 10 नहीं भरना, तो इस साल अगले साल खर्च कर देंगे. अगले साल जो इनकम आएगी उसको अगले साल खर्च कर देंगे. उससे अगले साल आएगा उसको अगले साल खर्च कर देंगे. यही तो करते रहे. वो अभी भी है 9A. But it is not there for 1023C. अगर आप 1023C में हैं, इनकम अक्रू भी हो गई है, तो भी स्पेंड करनी पड़ेगी. कहां से करेंगे? लेकिन इट इज देयर. 1023C में फॉर्म 9 नहीं है. दैट एक्सप्लेनेशन क्लॉज 2I of the explanation which is given under 11.1 is not there under 1023. में जाके गया था कहने के लिए कंसीडर्ड डिसीजन है. एक ही बात कह देते हैं कंसीडर्ड डिसीजन. अब ये बेनिफिट नहीं देना, नहीं देना तो यहां भी मत दो. लेकिन वो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वहां नहीं देंगे. 1023C, प्लीज नोट, there is no way of filing 9A. You have to spend it same year. Next year नहीं ले जा सकते.
और अक्रूवल भी है तो भी खर्च। इस अक्रूवल को डोंट मिक्स अप विद द एक्सप्लेनेशन टू अंडर 11। ये अक्रूवल इनकम का है, खर्चे वाला पेएबल वो अलग चीज है। If there is some payable, it will be allowed a deduction only in the previous year in which it is paid. वो तो एक्सप्लेनेशन है, वो इनकम की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है? खर्चे की बात, कि सम पेएबल है तो हम अलाउ जब करेंगे जब वो पेड होगा, एंड वी विल नॉट अलाउ यू। क्या मिक्स्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये तो मिक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। और क्या है कि एक तरफ आप कह रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम होना चाहिए, और सेक्शन 8 में तो होता ही मर्केंटाइल है। अरे फॉर्म सेक्शन 8 की जो इनकम्स है वहां तो हो ही नहीं सकता कैश सिस्टम। यू कैन फॉलो कैश सिस्टम द अदर केसेस, बट यू कांट फॉलो कैश सिस्टम इन द केस ऑफ सेक्शन 8। वो तो दिक्कत रहेगी। अब आगे बढ़ रहा हूं, अभी तक कोई क्वेरी है तो पूछिए। आई विल नाउ टेक अप द क्वेश्चंस। हाँ, कोई क्वेरी हो पहले? एनी क्वेरी टिल नाउ? एब्सोल्युटली नो क्वेरी। समझ में नहीं आता तो क्वेरी कहां से होगी? समझ में आएगा तो क्वेरी होगी। There are two topics in income tax. Nobody knows anything. One is Hindu undivided family, another is charitable trust. दो टॉपिक जो है जो आते ही नहीं समझ में, हर बार व्यू नहीं डिफरेंट होता है। Even Hindu undivided family, even Supreme Court has taken 3 decisions to change about that lady daughter. 3 more decisions. किसी को कुछ नहीं आता, ना हिंदू undivided family और ना charitable trust. इसलिए सवाल भी नहीं आते। कुछ एक्सपर्ट बैठे हैं जो जरूर पूछेंगे, पहले ही बोल दिया था उन्होंने। मोस्ट वेलकम सर, व्हाट डू क्वेश्चन? अरे कोई है ताकि अदर भी सुन ले, मैं तो सुन ही लूंगा। 1 मिनट, आपका तो हमेशा आना ही है जब मैं आऊंगा, चिंता नहीं है मुझे। आई नो इट, ही हैज टू आस्क मी क्वेश्चन एंड ही आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। चलिए सर, आपको पूछो, आता पहले घुसते ही आप पहले मिले हैं मुझे। चलिए। How do you interpret any other reason for 9A? So meaning thereby what we understand is that is Yavat Chandra Divakara you can prolong for all the unexpected. रीजन तो कुछ भी हो सकता है। 28 मार्च को आया, 31 मार्च तक खर्च नहीं हो सकता। नहीं, इवन 1 अप्रैल को आया। आई प्लान टू बाय टुमारो, नेक्स्ट डे। अभी मेरे पास आया, कंप्यूटर के लिए चाहिए मुझे, लेकिन मैंने नहीं, अगली बार करूंगा। रीजन कुछ भी डाल दीजिए, इट वाज अलाउड। Any other reason other than accrual system, any other reason, you put any reason. Normally यही होता है कि लास्ट में आता है और तो उसको हम अगले साल में खर्च करना। That was already previously also available, but now with this 9A, नहीं 9A तो अभी भी वही है, वही है, लेकिन 1023C में नहीं। सर क्या पढ़ेंगे इनकम टैक्स? 10 clause 23C has 23 provisos. कितने proviso हैं सर? Proviso कितने? 23। आपसे कहूं 15th proviso कैसे पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे, मुझे ये बता दो। 15th proviso, is it written that it is 15th proviso? No. Wherever in every act the word provided that is written, we know that it is first proviso. जब भी प्रोवाइडेड दैट लिखा होगा किसी भी एक्ट में तो वो क्या होगा? फर्स्ट प्रोवाइजो। फिर लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो वो हमेशा सेकंड प्रोवाइजो होगा। ये ध्यान रखना। उसके बाद मुझे मत पूछना। उसके बाद ऑल्सो आई थैंक सिंघवी साहब, आई थैंक दिस जेंटलमैन, आई ऑल्सो थैंक, आई ऑल्सो थैंक, आई ऑल्सो थैंक, कीप ऑन एडिंग ऑल्सो। तो वहां भी ऑल्सो लगा रखे। पहला ऑल्सो थर्ड प्रोवाइजो, अगला ऑल्सो फोर्थ प्रोवाइजो, अगला ऑल्सो फिफ्थ प्रोवाइजो। अब आपका अगला 6th होना चाहिए। आपको चेंज करना है, एक और डाल लो 6th, वो हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा अपने आप। आप समझ रहे हैं मेरे क्या है? तो आपको गिनने पड़ेंगे। 1 2 तो ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर नंबर लगा के एक्ट खोलकर देखना पड़ेगा, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, और कभी इधर उधर हो गया तो प्रोवाइजो ही गलत पढ़ लेंगे आप। 23 provisos, sir, and after 23, each proviso has explanation. Explanation number 1, explanation number 2, explanation number 3. भूल गए? explanation 3A, explanation 3B. ये हमारे हैं सर, आप देख लीजिए जाकर। How many provisos and how many explanations are there? ये हमारा इनकम टैक्स समझ में क्या आएगा ये बता दीजिए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो कुछ लिखा ही नहीं इनकम टैक्स ने, तो इसलिए वही समझ ही नहीं आता है। So what I'm trying to explain कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है जरूर पूछिए। मैं भी बहुत करके आया हूं
और आपको कंफ्यूज भी करूंगा, लेकिन लेट मी हैव द क्वेश्चन फर्स्ट, दिस साइड समबडी वांटेड। आपने जो बोला 1023C में मर्केंटाइल सिस्टम है, अगर मर्केंटाइल सिस्टम आप फॉलो करना चाहते सेक्शन 8 में नहीं। अर्लियर मैंने ऐसा पढ़ा था कि इफ यू अप्रोप्रिएट समथिंग देन इट इज एन एप्लीकेशन। समवेयर आई हैव अर्लियर पढ़ा था कि व्हेन यू अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स एनी एक्सपेंडिचर, खत्म हो गया ना अब तो, वो था लो, अब तो सम पेबल आ गया। वो तो आप जो बात कर रहे हैं कि हम एप्लीकेबल प्रोवाइड कर देते थे, वी कुड एलोकेट फॉर द फ्यूचर ईयर के, ये प्रोवाइड आज कर दिया, पेमेंट बाद में कर देंगे, अब तो खत्म हो गया ना। द लॉ इज फिनिश्ड। द लॉ सेज एनी सम पेबल, सेक्शन 11(1) के 11 में नीचे लास्ट में जाइए, सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए आपको 8 पेज निकालने पड़ेंगे, उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। क्योंकि हमने देखा सेक्शन 11(1) के नीचे भी एक्सप्लेनेशन है, वो अलग है। सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इफ एनी सम इज पेबल it will be allowed as deduction, it will be treated as application only in the previous year when it is actually paid. जब तक अरे वो 1023C में लिखना छोड़ दिया उन्होंने, अलाइन नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ नहीं किया। अभी थोड़े दिन रुक जाइए ना, ये मर्जी हो रहा है, हो जाएगा जब मर्ज होगा अभी नहीं है, अभी नहीं है, एग्रीड है। पर प्रोवाइड करोगे तब ना, पेबल दिखाओगे तब ना, पेबल नहीं है तो कैसे हो जाएगा? By resolution, if I am saying that I wanted to apply this to this way, and in then passing an entry in the Sir, your point is that I have an income accrued. I give an undertaking क्या? 11(2) कर लो ना उसका, क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो तो 11(2) कर दो ना, बात खत्म हो गई। ये इनकम है लेकिन नहीं आई है, 11(2) दूंगा मैं, ये कैसे की प्रपोजल करोगे? Give 11(2), the matter is over. Give 11(2) that I want to accumulate more than 15%, give 11(2), there is no problem. And 11(2) means form 10, now you have to file. अब तो फाइल करना पड़ेगा, खत्म हो। तो वो तरीका है सर, उसको ना छोड़िए, अननेसेसरी डाउट में जाइए, 11(2) फाइल करिए, खत्म हो गया, 10 फॉर्म क्लियर। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, द रिप्रेजेंटेशन केम टू देम कि सर यू आर सेइंग, कुछ अच्छा करने में बाद में गड़बड़ भी हो जाती है, कि दैट यू हैव टू फाइल फॉर्म 9A और फॉर्म 10 एटलीस्ट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। कहा दिया उन्होंने, क्योंकि हमने 10B और 10BB फाइल करना है 30 सितंबर को, लेकिन सर फॉर्म 10A 2 महीने करूं। देन द क्वेश्चन वाज रेज्ड, सर दीज आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, at the time of audit they come to know they are not able to spend that money or they want to accumulate, तो उसके लिए 31 अगस्त बहुत ठीक नहीं है, तो ये तो डेट का क्या होगा? मैं भी गया था कि भाई प्रॉब्लम तो आएगी। अब बेनिफिशियल सर्कुलर दे दिया, सर्कुलर नंबर 6 डेटेड 24 May 23, वही आकर रेस किया आपने मेरे पे पॉइंट कि भाई यू कैन सबमिट फॉर्म 9A और इवन फॉर्म 10 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर 139(1) एंड द एप्लीकेशन विल नॉट बी डिनाइड। ये लिखा ना, एग्जामिशन विल नॉट बी डिनाइड टू यू। सो इसलिए ये कर तो दिया बेनिफिशियल सर्कुलर, ये बेनिफिशियल सर्कुलर है और बेनिफिशियल सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन देम, इट इज बाइंडिंग ऑन देम। तो इसलिए वो पॉइंट को एग्री तो करा, 30 सितंबर नहीं करा, इवन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय हिम वाज कि लुक हियर, आई हैव टू फाइल 10B, आई हैव टू फाइल 10BB and that is 30th September. Will the why the extension has not been done to that? सर वो एक्सटेंशन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हर जगह 1 month बिफोर होती है। इवन नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो 1 month बिफोर। So what they want, the audit report should be filed 1 month before. But they have given a concession to you, even if you file 9A or 10 form up to the due date of return, we will give, the benefit will not be denied to you. So ये एक beneficial circular है, you can file 9A now or 10 and you can file another form 9A or 10 even after the due date, but before filing a return. पहले रिटर्न नहीं फाइल करके नहीं करना, पहले ये फाइल करना,
फिर रिटर्न फाइल कर दें, चाहे 1 घंटे का डिफरेंस हो, 15 मिनट का हो, उल्टा कर दिया तो मार देंगे वो। बात समझ में आई सर? उल्टा नहीं करना, पहले 9A और 9 कर सर। तो ये आंसर आपका हो गया सर। ये हालांकि वो रूट था वही रहा दे, if they just he said will they extend the date, I said nothing doing. Institute is not asking for any extension. We have already decided for last year we will never ask for extension. Why should we ask for extension? Let the client ask for extension. हमें बदनाम कर देते कि आप करते, तो हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे। आप 9A 9B भरना है भर दीजिए, नहीं भरना तो बाद में दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कराया है, और वो था बिकॉज 115 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3I, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने इस बार। सेक्शन 115 TD पता है एक्रीडिटेड इनकम, एक्रीडिटेड इनकम का बोला हुआ है कि देखिए इफ यू मर्ज विद एनी ट्रस्ट विच इज नॉट एलिजिबल फॉर 12A और रजिस्ट्रेशन या 23C अप्रूवल, तो उस केस में हम इंटायर इनकम, एक्रीडिटेड इनकम को टैक्स लगा देंगे 30%, मैक्सिमम मार्जिन रेट। एक्रीडिटेड इनकम समझ रहे? ऑल द न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका भी एक पर्पस बता दूं, सुन लीजिए, ये एक्रीडिटेड इनकम आया क्यों? Some gentleman, I remember 7 years back, came to me that he is running 3 colleges, all doing very well. All are doing very well. I want to pay tax. I want to pay tax. They may take the tax 115 TD. I want to discontinue the college. मैं pay कर दूंगा, टैक्स मैंने दे दिया, तो क्या वो कॉलेज मेरा हो जाएगा? मैंने कहा दोबारा ये बात नहीं करना, आपका कुछ भी नहीं है, because you have transferred to an irrevocable trust. ये आपका नहीं है। ये जो कहते हैं ना मेरा कॉलेज है, ये तो बड़े नाम लेते हैं, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, आपका कुछ भी नहीं है। This belongs to public at large. मैं कहा even after paying the tax, this college does not belong to you. All assets and liability will go to the charitable trust. I mean, will go to the, either you donate it or will go to the government or may go to the charity commissioner. आपका कुछ भी नहीं है सर, ये मैं पहले बता दूं। Once you have given to a charitable trust which is irrevocable, even if you pay tax, tax is only because you have claimed exemption. Tax is only you have claimed exemption under income tax. लेकिन टैक्स इसलिए थोड़ी है कि आपका बन गया, वो आपका नहीं है। तो इसलिए टैक्स देने के बाद भी फिर कहता क्या फायदा हुआ? फायदा तो आप कुछ भी नहीं हुआ, आपका है ही नहीं। जब सोच के कहता हम तो चाहते थे हमारा प्राइवेट हो जाए, मैं कहा आपको डिग्री वो मिलता नहीं है रिकॉग्नाइज कोर्स, इसलिए आप उसमें, नहीं तो क्यों करेगा कोई? यू रन ए इंस्टीट्यूट but don't take recognition under income tax. You pay tax on that. It is a commercial organization. He said they don't give us registration or give us the recognized courses. I said that is the difficulty which is happening with the finance ministry and the HRD. HRD कहता nothing doing. You need to be a charitable. Income tax का लगता हम टैक्स लगाना चाहते हैं, कहते नहीं, ये चीज है। आप समझ गए? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल दैट क्रेडिटेड इनकम में इन्होंने सेक्शन 150T3 डाल दिया, 3 क्रॉस 3I, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली जो ऑलरेडी थी, आपके पास थी बिफोर दिस केम, यू हैड रजिस्ट्रेशन, यू डोंट वांट टू टेक रिन्यू इट, और यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको मिल गई, उसके बाद 5 साल बाद रिन्यू करानी है, यू डोंट वांट टू रिन्यू इट, यू आर ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, आपने उसको रेगुलराइज नहीं कराया, सब केसेस में आपको 115 TD लग जाएगा। 115 TD लग जाएगा, मतलब ऑल वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस लायबिलिटी पे आपको मैक्सिमम मार्जिन रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने एग्जिस्टिंग ट्रस्ट की भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई या अप्रूवल नहीं कराई, अप्रूवल इज अंडर 1023C, रजिस्ट्रेशन इज अंडर 1112, फर्क कोई नहीं है, लेकिन नाम अलग है, उधर अप्रूवल है, इधर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी थी 21 से पहले, आप कहते छोड़ देते मैं नहीं कराता, तो आप फंस गए। आपने प्रोविजनल ली, आपने रेगुलराइज नहीं कराई जो करानी चाहिए थी, आप फंस गए। क्या? आपको 115 TD सबसेक्शन 3I लग जाए।
आपके पास अप्रूवल थी 1023C में, VI और V में, तो आपको मैं बता दूं आपको रिन्यूअल कराना ही पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो आपको पूरे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। Then I went to them. Many people have missed the rail. They could not apply for registration. Although there were lot of extension, difficulty बहुत हुई, कुछ समझ ही नहीं आया 30 जून को करना है कि करना है। लास्ट डेट was 21 नवंबर 2022 ये था। अब उन्होंने सर्कुलर 6 में दे दिया कि जिसने नहीं कराई है रजिस्ट्रेशन, पुराने में रजिस्ट्रेशन थी 21 से पहले, काइंडली अप्लाई बाय 30 सितंबर। इसलिए दिया क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये मत सोचिए उनके बाद में नजर नहीं पड़ा, वो 115 TD में पुराने ट्रस्टों को सबको टैक्स कर देंगे। मेरी बात को समझ में आ रहा है सर? जिसने हु मिस द रेल should apply by 30th September if he was registered earlier prior to 21। कईयों ने कहा छोड़ दो ना, नहीं कराते, रिन्यूअल नहीं कराते। रिन्यूअल तो आपको कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो 115 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3I लग गया। क्लियर है सर? पहला पॉइंट कराना ही पड़ेगा। अब आपने प्रोविजनल ले ली, प्रोविजनल में लॉ था that you should apply for regular registration if there is a commencement of the activity within 6 months of the commencement of the activity, and if there is no commencement activity at least 6 months prior to the completion of 3 years। यही था ना सर? यही था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है और आपकी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी अगर हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलराइज कराना है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 90% ने 6 महीने के बाद अप्लाई नहीं किया। they were already in existence. They applied for fresh registration, a new registration, but they did not apply within a period of 6 months। भूल गए, पता भी नहीं लगा कि अप्लाई करना। सबके दिमाग में वही था 3 साल का पीरियड 6 महीने पहले करेंगे और कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हो चुकी है। उसके लिए भी अलाउ कर दिया गया कि आप 30 सितंबर तक करा लीजिए। उसके लिए भी कहा गया 30 सितंबर तक करा लीजिए। उनके लिए भी कहा गया जो ATG पुराना होल्ड करते थे कि भैया आप क्या कर लीजिए 30 सितंबर तक करा लीजिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? ए बेनिफिशियल सर्कुलर हैज बीन इशूड गिविंग यू ए लाइफ टाइम बेनिफिट amnesty that please apply for registration or renewal of registration, or please go for, when we have taken a provisional, you go for what you call regularization of the new law. Otherwise we are going to put you under 115 TD subsection 3 clause 3I। इस सवाल का कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ, माइक तो इधर ही था। अरे कोई बैठना पड़ेगा सर, माइक लेकर मत जाइए, तो सो गए। चलिए चलिए। हाँ सर थोड़ा जागिए। मैं किसी को सोने नहीं देता और ये सो गया, इसका मतलब मैं फेल हो गया आज। चलिए, उसके सब्जेक्ट इंटरेस्ट का नहीं था इसलिए। हाँ जी सर, फॉर फेलियर टू फाइल दिस application within 6 months from the commencement of the activities, now the extension is granted for getting the benefit under section 12AB, but ATG renewal में ये extension नहीं दिया है। ATG renewal के लिए वो तो दिया ही नहीं, वो दिया नहीं, extension नहीं दिया है। तो ये the difficulties was lying with the glitches in the this on portal. Because of glitches in the portal, the time was extended, sir. The extension has been granted. Now the same glitches were faced by the trust for filing. पहला तो एक बता दूं, ATG अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन लेता है ATG? Companies cannot give because they are under 115 BAA और BAB। ATG वहां मिलता ही नहीं है। मिलता है क्या सर? तो क्या करेंगे ATG लेके? जब खत्म ही हो गया, 30% में है ही नहीं, 22% में है, प्लस 15% जो भी है, 10% 25% में है या 15% में, तो ATG कहाँ है? और आप न्यू रिजीम में है, इंडिविजुअल HUF, VOP, BOI, आर्टिफिशियल। वेयर इज ATG? हु इज गिविंग ATG? हु इज आस्किंग फॉर ATG? टेल मी। एक पार्टनरशिप फर्म बस और कौन कर सकती है ATG?
अब बता दीजिए 30% वालों को छोड़िए एटीजी है, बाकी एटीजी है कहां है सर? मुझे ये तो बता दीजिए। सारा तो चैप्टर 6 से खत्म कर दिया उन्होंने, वो तो न्यू रिजीम में ही है ना। आपके ये 115 BAA कंपनीज अंडर न्यू रिजीम, उनको एटीजी मिलेगा सर? क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? BAB में है तो क्या करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAD में है या BAE में है तो क्या करेगी? But that benefit is not available in the hands of the donor, sir. But what about donor is not affected even if that is cancelled. ये तो law है. I donate. At that time you had ATG, and later on it is whatever cancelled. The donor is not affected, provided you have given Form 10BD. वो नहीं affect करेगा. वो तो उसका cancel. ATG किस benefit के लिए होता है? Donor के लिए या डोनी के लिए? डोनी के लिए तो कुछ भी नहीं है. डोनी के लिए एटीजी क्या करना है? उसको तो खर्च करना ही करना है सर। एटीजी का पैसा आए या कैसे भी आए, डोनी के लिए कोई है कोई चीज? किसके लिए? डोनर के लिए। एंड वी हैव जजमेंट्स दैट इफ यू मेक ए डोनेशन एंड इफ दे वर रजिस्टर्ड दैट दे वर अंडर एटीजी एट दैट टाइम, लेटर ऑन इट इज विथड्रॉन, डजंट मेक एनी डिफरेंस, उसको एटीजी का बेनिफिट मिलेगा। ये तो है ना जजमेंट सर, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। सर वो कोई बात नहीं, आगे नहीं मिलेगा। अरे आगे नहीं मिलेगा तो उसकी गलती है। डोनी को बताना पड़ेगा, मेरे को नहीं मिलेगा एटीजी। पहले मैं बता रहा हूं एटीजी तो डिसकंटिन्यू वैसे ही होने वाला है और ऑटोमेटिकली बाय प्रैक्टिकल दे रहे हैं एटीजी खत्म हो चुका है सर। दिल से पूछिए, एटीजी खत्म हो गया और खत्म इसलिए तो करा है। अब मैं क्या बोलूंगा आपको। हमारे यहां जब ये न्यू रिजीम आई तो मैंने वहां गया था कि सर ये ओल्ड रिजीम को क्यों खत्म कर रहे हैं? ये न्यू रिजीम आई है, ओल्ड रिजीम को खत्म कर रहे, क्या फायदा है? कहते नहीं, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। मैं क्या? सैलरी वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। मैं क्या? 70% HRA लेते हैं और सब बोगस है। 70% HRA बोगस है। अपने दिल से पूछिए है कि नहीं है? आपने तो रिटर्न भरी हुई, उनकी सब बोगस ले रहे हैं सैलरीड वाले। और दूसरा, सैलरी वाले दान बहुत देते। मैं क्या, वो तो कबीर दास कह गए थे, दान दिए चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटे और नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए भक्त कबीर। मैं कहता कबीर तक का कितना बड़ा विजन था कि दान देने से धन नहीं घटता है, वापस आ जाता है और साथ में टैक्स भी मिल जाता है, एग्जेम्पशन। सर प्रोविजनल और 90% वो जो डोनेशन है वो सैलरी वाले देते हैं। 40,000, 50,000, 60,000, अब आप वापस ले लेते हैं। देखिए कितना हमारे जहां दानी है लोग, दान दे के धन नहीं घटता, वापस आ जाता है। तो ये सर, ये उनको पता है आपके बारे में, इसलिए ये काम बंद करने जा रहे हैं। मैं पहले बता दूं, और ये सच बात है, हमें सब पता है कि वो साला क्या कर रहा है। हो सकता है हमने ही दिलवाया उसको। सारे सैलरी वाले दान देते हैं और आप तो नहीं देते, किसी ने नहीं दिया। सैलरी वाले सारे देते हैं, सबकी रिटर्न आप भरते हैं और आपको पता है दान दिया नहीं है इसने। Sir, 5 or 10% trust are of this nature, so that cannot be made a precedent. It is an exception, sir. Sir, 90%, 95% दान जो है बोगस है। Now only 10% are bogus. That cannot be a precedent, sir. Sir, it is अभी पॉलिटिकल पार्टियों को दान दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी है सर, मगर उसके नोटिस आ गए ना, पॉलिटिकल पार्टियों के भी नोटिस आ गए, वहां 100% मिलता है, इसलिए वहां पर भी आ गए। सर दिल से पूछो, बदल जाओ, वक्त बदलना पड़ेगा। अब उनके पास सब इंफॉर्मेशन है, दे नो मच मोर देन वी नो अबाउट आवरसेल्व्स। सब उनको सब पता है क्या हो रहा है। सर एटीजी खत्म हो रहा है, पहला पॉइंट। नहीं सब तो निकल ही तो गया है। अरे ओल्ड रेजिम के लिए रुका पड़ा है, वो तो हमने रुकवाया। नहीं एटीजी है कहां? नई रेजिम में एटीजी है क्या? और 90% नई रेजिम में जाएंगे, 100% जाएंगे। सिर्फ मेरा जैसा आदमी, क्योंकि मुझे 80 क्यू भी मिलता है, 3 लाख रुपए का सैलरी का वो रॉयल्टी का, नहीं तो मैं भी नहीं में जाऊंगा। मैंने बोला मैं भी जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन ये बंद कर दोगे तो जाना ही पड़ेगा मुझे नई रेजिम। But so long it is there on the statute book, sir, we have to go by that. Sir, if the people are commit something and they are able to find out that what is happening, even 22,000 notices have been issued, that mismatch of the salary wala.
सैलरी यहां तक तो ये है सर, सैलरी वाले क्या कर रहे हैं, पता नहीं सीए भरवा देते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं 80C की, जमा कुछ नहीं कराया होता। सर ऑल दिस एजुकेशन 80D क्लेम कर रहे हैं, जमा कुछ नहीं कराया होता। अरे ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? क्या हम लोगों को ये काम करने के लिए पैदा हुए हैं? सर मैं तो 100 चूहे खा के हज को चला गया, मैं अब गलत काम नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, ये मत सोचना मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, छोड़ेंगे नहीं, गलत काम करने नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। सबको पता है 80G, दानी यहां पर जो है उसको 80G नहीं चाहिए, दानी वालों को 80G नहीं चाहिए, उसे दान दिया, गुप्त दान है। भगवान को करोड़ों रुपया दे आइए, कोई पूछता है? वो तो कच्चे का भी लेता है, भगवान तो लेता ही कच्चे का है, पक्के का मिलता कहाँ है भगवान को? सर बात सब समझिए, प्रैक्टिकल चीजों पे आइए। कि पॉइंट इज कि आपको रिलीजियस ट्रस्ट को 80G की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और रिलीजियस ट्रस्ट को गुप्त दान आता ही आता है। भगवान पे से सब प्रार्थना करते हैं, बचा लीजिए, ये ले 5% तेरा शेयर है, सभी तो यही कहते हैं सर, सभी भगवान को यही कहते हैं। भगवान का डर ना हो तो दुनिया खा जाए एक दूसरे को, ये भगवान का डर है तो उसमें भी सब कुछ है। भगवान कहता मुझे क्या लेने देना, तेरा व्हाइट और ब्लैक मुझे कुछ नहीं कहता, मैं जब भी तू मुझसे मांगेगा मैं कहूंगा तथास्तु। भगवान तथास्तु करता है। इवन ये हमारी लेडीज, वो जो लड़कियां 16 सोमवार का व्रत कहती हैं और कहती है मेरी शादी करा दे, वो कहता तथास्तु, भुगतना तूने, मैंने थोड़ी भुगतना है। यहां पर भी यही है, कर्म गलत करेगा, चोर भी जाता है भगवान के मंदिर में कि आज मुझे माल मिल जाए, और अमीर भी जाता है, सब जाते हैं। भगवान कहता है तथास्तु, तेरा कहना, तू मेरा भक्त है मैं करूंगा, लेकिन कर्मों का फल तू भुगतेगा, मुझे नहीं भुगतना। गलत काम करेगा, गलत काम होगा, पाएगा। तो इसलिए सर खत्म, 80G खत्म, सीधी बात। क्या कहा सर? सर हम डिसकंटिन्यू कर गए हैं सारा चैप्टर 6 से। सर कौन देगा, पहले बता तो दो नाम 80G वाला कौन देता है उनको डोनेशन? मैं वो ही तो पूछ रहा हूं, क्या वो कंपनी है, क्या 22% दे रही है कि 30% वाली कंपनियां रह गई हैं? मोस्टली क्या 90% कंपनियां, 25% वो 22 में चली गई, उनको 80G मिलता ही नहीं है। जब जरूरत थी प्रधानमंत्री जी ने कर लिया था, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड 1 साल बढ़ा दिया था, अदरवाइज 80G खत्म कर दिया। इन ए वे इट इज फिनिश्ड, बट there are people who are under the old regime, for them it is on the statue, otherwise it is, there is no requirement to do it. और ये स्टैचू भी थोड़े दिन रुक जाइए, अगले बार आने दीजिए, चैप्टर 6 से ही खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है सर। वो पुरानी का तो रहेगा, स्टैचू पे तो रहेगा, लेकिन अगर दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल दोज हु आर ऑलरेडी, तो खत्म हो गए सर। कोई 80G का मतलब ही नहीं है। अब आपको दान देना है तो 80G का क्या मतलब है? दान दो ना, उस पर भी खर्चा क्लेम करोगे, ये तो गलत है सर। 80G में दान जा रहा है, और जब दान जा रहा है फिर खर्चा किस बात का? किससे इनकम टैक्स? क्यों इनकम टैक्स वाला आपको दे, दान आप करें और इनकम टैक्स आपको रिलीफ दे, बेनिफिट आप ले? नहीं होगा, अब नहीं होगा सर, वक्त बदल गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दिस, बाकी इशू रह जाएंगे। चलिए सर, हम लोगों का दिल नहीं, मैं भी जिस एज का हूं ना, दिल नहीं मानता है, लेकिन बनाना पड़ेगा सर, करना क्या है, क्योंकि वक्त बदल गया है। हमने बहुत कुछ किया है, हमने तो बहुत कुछ किया है, आपने तो यंग वालों ने कुछ कम किया होगा, हमने छोड़ा नहीं है। सीधे सीधी बात है, वो वक्त था कर लिया, अब वक्त नहीं है, मत करे तो अच्छा है, नहीं तो फंस जाएंगे। मुझे तो खुशी है जब फेसलेस आया, अभी तो कहा गया था कि फेसल कर दीजिए, तो 3 उधर बैठे थे, 3 इधर बैठे थे, सब चुप, ना वो चाहते थे ना हम चाहते थे। मैं सीनियर मोस्ट था, मैं बोल पड़ा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फैसले से हो ही नहीं सकता। बड़े खुश हो, यस यस सर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर ए सीनियर मोस्ट, यू आर सेइंग करेक्टली।
मत लिख दो, लिख दिया कि नॉट पॉसिबल, इफ यू डू वांट टू डू इट, हैव ए सिंपल थिंग और डन। अगले दिन मोदी जी ने इंफॉर्मेशन भेज दी, इट हैज टू बी डन, करना करो, आपको करना पड़ेगा। फिर हमने हाथ जोड़ के करा था। इसलिए बात को मान लीजिए, अंदर की बात मुझे मालूम है। चलिए सर आगे बढ़ते। थोड़ा बहुत हंसाना पड़ता है सर, नहीं तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ बातें तो करनी पड़ती है। चलिए वापस सर, चलिए सर री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 6 मंथ्स में हमको अप्लाई करना पड़ता है फिर से। 6 months prior to the completion। सर फिर से अप्लाई किया और ड्यू टू टेक्निकल कोई प्रॉब्लम की वजह से कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। टेक्निकल प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर रहा है तो आपको अपील करनी पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, वो तो अपील में जाना पड़ेगा। रिजेक्ट तो हो सकता है, 12(4) में कर लिखा हुआ है, 12AB, और मैं कुछ नहीं कर सकता, अपील, नथिंग एल्स। रिजेक्ट तो करा, टेक्निकल कारण कहते हैं, होता कुछ और है। सर अब वक्त बदल गया है, उसको भी प्रॉब्लम आएगी अगर गलत काम करेगा, और हमें भी प्रॉब्लम आएगी और गलत काम करेंगे। करवाएंगे, अब करवा कर रहे हैं, करेंगे तो। हाँ जी चलिए सर, और कोई क्वेश्चन है? ये तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी। Commencement of activity, the date, whether the receipt of donation or spending of for the object of the देखिए trust. सर, रिसीट ऑल्सो इज, कल रिसीट आ गई, वो तो चार्टर से भी आ जाती है, लेकिन बेसिकली कुछ ना कुछ तो चैरिटेबल एक्टिविटी करें। रिसीट इज नॉट ए चैरिटेबल एक्टिविटी, एंड स्पेंडिंग अमाउंट इज ए चैरिटेबल एक्टिविटी कमेंसमेंट। वो तब है, अब रिसीट से थोड़ी एक्टिविटी कमेंस हो गई, वो करिए तो ठीक है। चलिए आगे सर, आगे बढ़े। अब आपको देखिए क्या है सर्कुलर में, मैंने आपको बोल दिया सर्कुलर 6 में हाथ जोड़ के विनती है, जो रह गए हैं, those who have missed the rail kindly apply by 30th of September, and those who have filed, those who are filing 9A, जो चला गया 9A, तो those who have filed 9A or Form 10 on 31st August, they have still chance to file another 9A or 10, or those who have not filed, absolutely no problem, they can file up to 31st October. That this is 9A, this is 10. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेनिफिट सर्कुलर में दे दिया गया है। आगे बढ़े सर। अब इनकम टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट 3 जगह टैक्स लगता है। एक लगता है 115 TD, अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज कर दिया 115 TD, जैसे वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा लगता है 164 सबसेक्शन 2, जिसमें पहले लिखा होता था स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगेगा, यही लिखा था ना, स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगेगा। लेकिन अब तीसरा जो डाल दिया गया है 115 BBI, वो बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पता क्या 150 BBI क्या कहता है? अगर ये स्पेसिफाइड इनकम है, इफ देयर इज ए स्पेसिफाइड इनकम अर्न बाय दिस, दे विल बी लायबल फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता 30% 115 BBC का भी लिखा है ना, 30% 115 BBI में भी आ गया है, और वहां मैक्सिमम मार्जिन रेट क्यों डाला, मेरे तो अभी तक समझ नहीं आया। कहां पर 164(2) में, वहां 1 से मार्जिन रेट में गया कि ये मैक्सिमम रेट ही 30% है मैक्सिमम, तो क्यों नहीं चेंज कर देते? कि तो हो सकता है कभी बढ़ा दे, तो इसलिए रखा हुआ है। अरे क्या है यार, वहां 30 है तो 30, या तीनों में MMR डाल दो, या तीनों में 30% डाल दो, कि क्या बोलना है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं पहले बता दूं। अब ये कह दिया, मैं क्या बोल रहा था, किस चीज का बोल रहा था, 115 BBI किस कारण से? आपने 9A दिया, दे दिया, explanation 2, explanation clause 2 of explanation, and you have given that idea, I will apply this income in the year in which I receive it or year following that, या आपने कहा I'll spend it next year, यही है ना 11(1)(a). 11(1)(b) कहता है if there is a violation of 11, ये जो explanation, तो उसको हम टैक्स लगा देंगे इन द प्रीवियस ईयर इन विच दैट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। अगर कहा था अगले साल, तो अगले साल टैक्स लगा देंगे। अगर आपने कहा था 4 साल की FDR कराई है या 5 साल की कराई है, तो 5 ईयर प्लस 1 ईयर 6 ईयर में लगा देंगे। ये 1, इसे बोलते हैं 11(1)(b), वायलेशन ऑफ 9A। क्लियर कर दिया उन्होंने कि अगर ये है तो अब इस पर 30% टैक्स लगेगा। पहले स्लैब रेट लगता था, अब कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। क्लियर है सर? 30% टैक्स इफ देयर इज ए वायलेशन ऑफ फॉर्म 9A जो भरा, और 11B में वो टैक्सेबल होने जा रहा है। सिमिलरली 11(2),
You can accumulate more than 15% by filing form number 10. But there is the 11(3). If it is ceases to be accumulated, ceases to be remain invested, applied for other purposes, you लिखा ना 11(3) में, तो उस साल की या 5 साल का टाइम दिया था और 5 साल खत्म हो गए, अब 6वां साल अलाउड नहीं है, 5 साल खत्म हो गए, तो उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा 11(3) में, लिखा है ना सर? उसको लिख दिया कि उसमें 30% लगेगा, उसमें 30 लगेगा, ये भी क्लियर कर दिया 115 BBI में। 13(1)(c) में क्या है? That it is inured for the benefit of a person referred to 33 or applied for the benefit of person referred to in 13(3), that part of amount वो taxable हो जाएगा, जो benefit of 13(3) वाले हैं हो जाएगा। कौन से रेट पर? 30%। वो भी वहां डाल दिया 13(1)(c). 13(1)(d) कि आपको accumulate करना है अंडर 11(5). जो पर्सन 11(5) में नहीं accumulate किया और वो जो exceptions में नहीं आता, उसके लिए भी 30% टैक्स लगेगा। 13(1)(d). 11(1)(c) अगर पैसा आउटसाइड इंडिया खर्च किया एंड यू डोंट फॉलो द कंडीशन देयर, उस पे भी क्या लगेगा? 30%। अरे एक और कह दिया, इफ यू एक्यूमुलेट मोर देन 15%, ये नहीं समझ में आया। इफ यू एक्यूमुलेट मोर देन 15%, अदरवाइज देन इट इज अलाउड। अलाउड मीन्स 10 to वो अगर वो 9A और 10, अगर आप उससे ज्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो उसके ऊपर भी 30%। ये 115 BBI है सर। 30 का मतलब ये नहीं है सरचार्ज भी लगेगा, एजुकेशन भी लगेगा, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन 30% टैक्स लगेगा 115 BBI। ये क्लियर हुआ सर? अब 164(2) की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई। 115 TD की इंपॉर्टेंस है, 115 BBI की इंपॉर्टेंस है। वो किस लिए काम आएगा ये बता दो। कौन से वाला? कौन से वाला? 164(2). 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो भी वहां जाना है, 9A और वो है वो भी वहां जाना है, तो किस लिए काम आएगा? किस लिए काम आएगा? कोई ऐसा एप्लीकेशन दिया जो लगा कि वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, तब 164(2). 164 में स्लैब रेट है, या आपने इस बार 40 IA TDS नहीं काटा, अलाउड डिसअलाउ हो गया, नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशन हो गई तो अलाउड हो जाएगा। भाई यही रह गया 164(2), और तो कोई रहा नहीं, ये तो कोई रहा नहीं। ये क्लियर कर दूं मैं आपको। सो 3 टाइप के टैक्स हैं। 164(2) which is now rarely will be there. 115 BBI, I have given you all the circumstances where 115 BBI will be there, and 115 TD वो तो तभी है जब मर्ज कर दिया नॉट एलिजिबल, या आपका कैंसिलेशन हो गया, यही है ना, या आपने डोनेट नहीं किया। लॉ कहता है अगर आपने ट्रस्ट को डिसॉल्व करना है, डोनेट ऑल एसेट्स टू द अदर ट्रस्ट ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट विद इन 1 year, नहीं तो आपको 115 TD लग जाएगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर? कोई चीज? कौन कह रहा है 250 है? 3 है मेरे ख्याल, तो आज 3 है, कल 250 थी। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल। But how would it be treated as a specified income? Say a trust has got 20 lakh in gross income, 15 lakh is spent for the expenditure for the objects of the trust, 3 lakh is 15% deduction, 2 lakh remains. Now whether these 2 lakh would attract 30%? Yes. But, Yes, this is what is given. No, 150 BBI. No. आपने 15% तक तो अलाउड था। Correct, sir. 15% से ऊपर 11(2) क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो करो। वही तो कह रहे हैं, 15% तक अलाउड था, 15% के बाद आपने 11(2) देना चाहिए था। एक तो ठीक है 15 एक्यूमुलेट है, आपने 80 किया, 15 वो मिल गया, तो 5 के लिए क्या करना था? या 9A देना था या 11(2) देना था, आपने दिया नहीं है तो लाइए 30%। यही तो कह रहा है वो, यही कह रहा है सर। 11(2) का जो कंडीशन है कॉन्ट्रावेंशन होता है, मैंने इंटीमेशन नहीं दिया है फॉर्म नंबर 10 का, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ही आता है सर। अच्छा वही तो होता है, बाकी तो 11(3) लिखा है उसने, ऊपर तो 11(3) लिखा है कि आपने एक्यूमुलेट कर लिया और सीजीएस भी है, वहां 11(3) लिखा है सर। अब 11(2) वाला वायलेशन अलग है, 11(2) का वायलेशन है 11(3).
11.2 कर दिया, 11.3 आ गया, ceases to be invested, ceases to be remain accumulated, spent for any other purpose, वही तो 11.2 है सर। 11.2 read with 11.3, 11.3 में सब कैसे कवर? हाँ देखो सर, 11.3 में देने के बाद है कवर्ड। एक बार फॉर्म दे दो 10 तो उसके बाद 11.3 लगता है। अगर 10 दिया ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो नीचे आ जाओ। दोनों है सर, है 11.2 एक्सेप्ट हो गया तो आप 11.3 में आएंगे, 11.2 एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप इधर रहेंगे। My question is whether 11.2 is required to be given when there is a surplus of only 2 lakh, which is basically exempt, sir. There is a surplus of income. एक मिनट, अब आपको बोल दिया कि 15 से ऊपर नहीं है तो 164.2 खत्म हो गया। मैंने वही तो बोला। अब आप 164.2 के ऊपर ले जा रहे हैं। मैं कह रहा 164.2 रहा ही नहीं। उन्होंने कहा जी कोई भी पैसा है, 1 रुपया भी है 15% से ऊपर, तो आपको प्रोवाइडेड वो 11.2 में जाना पड़ेगा या 9A में, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, पैसे दे दिए। सर लॉ को पढ़िए ना सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। वो हमारे, देखिए हमें पुरानी बातें याद आती हैं और दिल है नहीं मानता, लेकिन मनाना पड़ेगा। मेरा भी नहीं मानता, लेकिन क्या करूं, लॉ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर पहले 2.5 लाख या 3 लाख माफ था, तभी तो 64.2 में जाते थे। अब 64.2 की वैल्यू नहीं रही। अब तो 115 BBI ने कह दिया 1 रुपया भी 15% से ऊपर होगा तो आपको टैक्स 23% देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, लिखा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं सकता सर, लिखा हुआ लॉ है। अब आप जब टेस्ट अभी तो आएगा ना आगे लॉ में, तब देखेंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं लगा, नया नया लॉ आया है। सर क्लियर है, मानते हैं? दिल नहीं मानता, लेकिन मानना पड़ेगा। दिल है कि मानता नहीं, क्या करें हम लोगों को पुरानी चीजें याद। यू नहीं एग्री टू, दोबारा पढ़िए सर। एग्री क्यों नहीं, यू हैव टू एग्री टू माई पॉइंट ऑल्सो। एग्री टू डिसएग्री नहीं है सर, नहीं लॉ कह रहा है, ये भी मान रहे हैं, ये भी अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, आप भी एक्सपर्ट है। मैं नहीं सर, मजा तभी आता है जब डिस्कशन हो, मजा तभी आता है जब डिफरेंस ओपिनियन हो, तो हम अपने आपस में सेटिस्फाई करें। वो चुप हो गए ना जब मैंने कहा 11.2 दे देना, नहीं तो ये अड़ते जाते हैं। चलिए सर आगे आ रहा, कमिंग बैक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तलाटी साहब ने भी कहा और मैंने भी यही कहा कि आप कह दिया इफ यू डोनेट टू एनी अदर ट्रस्ट 85% एप्लीकेशन होगा, तो उन्होंने कहा 15% टैक्स लगेगा। मैंने भी यही कहा। मैं डिपार्टमेंट गया, मैंने कहा ये क्या किया है, कहता हमारी तो इंटेंशन ही नहीं टैक्स करने की, 100 का 100 दे दो, कुछ नहीं हो, 15% एक्यूमुलेट हो गया। मैं कहा ये कौन सा कह रहे हो भाई, एक मिनट सुन लो ध्यान से। उनकी इंटेंशन नहीं है जो लॉ बनाने वाला है। मैंने कहा क्या मतलब, कहता हम आप पहले क्या करते थे, 15 जोड़ के बाकी दे देते थे और उसका ले लेते थे, अब 100 का 100 दे दीजिए बाकी। कहता 15% हो गया ना। मैं क्या बातें कर रहे हो। लॉ कहता है सेक्शन 11(1)(a) क्या कहता है, एनी इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी हेल्ड एंड ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेज और पार्टली टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया एंड इफ देयर इज एनी अमाउंट सेट अपार्ट और एक्यूमुलेटेड फॉर to be spent later on, so much of the amount set apart or accumulated which does not exceed, accumulate करूंगा तभी होगा ना। मैंने कहा 1 करोड़ आया, 1 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और 1 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया, तो मैंने accumulate क्या किया है, कहाँ किया है accumulate? accumulate करूंगा तो मुझे 15% का माफ दोगे ना। जब मैंने दे ही दिया तो माफ कैसे देगा, और फिर कह रहे हैं आप 80% 5% माना जाएगा। अभी तक उनको कुछ नहीं पता, उनकी इंटेंशन नहीं थी लगाने की, लेकिन लगी हुई है। और वो भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी। अगर आप कोई मुझे बता दें कि क्यों नहीं लगेगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। मैंने उनको भी बोला, पर वहां सुनता कौन नहीं है, वहां नहीं सुनते, जो गलती कर जाते हैं। मैंने कहा ये नोट कर लो, ये गलती ये गलती, कहता आने वाला करेगा, हम तो जा रहे हैं। ये को जवाब है यार। सब मेरे हिसाब से तो 15% पे टैक्स लगेगा। किशन जी मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत, आप बताओ। ये तो जीएसटी एक्सपर्ट है, लेकिन इनकम टैक्स तो जानते ही है साथ में, ऐसी बात नहीं है। मैं भूल गया कि मैंने किससे पूछ लिया, मेरे से जीएसटी पूछने का तो मर गया, इसलिए चलिए बोलिए क्या आपका कोई विचार बनता है। वो कहते नहीं लगेगा। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन है 15%? क्या 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन है? 15% तभी मिलेगा जब आप एक्यूमुलेट करोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो कह रहे नहीं, हमने इसको, हमारी इंटेंशन नहीं है।
कहता आपका कोई आया नहीं, आप ही आ गए हो हमें ये बताने। मैंने कहा जिसको समझ आएगा तो ही तो आएगा, अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या ये। सर मेरे हिसाब से 15% पे टैक्स लगेगा। मैंने उनका 2 करोड़ है, 2 का 2 खर्च दो, कुछ नहीं एक्यूमुलेट किया तो क्या 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं किया, तो खर्च ही कर दिया। अगर आप 2 करोड़ आया, 1 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च कर दिया तो आप एक्यूमुलेट 10 कर सकते हो, 15 नहीं कर सकते, 30 नहीं कर सकते। एक 2 करोड़ आया और आपने 81 खर्च कर दिया तो 20 ही एक्यूमुलेट करोगे। 170 किया तो 30 तक कर सकते हो, अगर 160 किया तो कर नहीं सकते 30 से ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा हमें कौन सा समझ में आया है, देखेंगे, लेकिन हमारी इंटेंशन टैक्स लगाने की नहीं थी। बट कोई नहीं अप्रोच करा सिवाय मेरे कि ये कहने के लिए सर इसमें तो टैक्स लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी क्लियर कि भाई 85% उसका एप्लीकेशन माना जाएगा और 15% मेरे पास नहीं है जमा करने के लिए। मैंने तो दे दिया है उसको, 1 करोड़ रुपया उनको दे दिया, तो 15% कैसे एक्यूमुलेट करूं? सेक्शन 11(1) पढ़िए, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि उस पर टैक्स लगेगा, मैं भी कह रहा हूं टैक्स लगना चाहिए एज पर द लैंग्वेज, बट दे से वी हैव नो इंटेंशन। कोई सर्कुलर आ जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि अभी तो आना है ना, वो तो अगले साल से होना है, तो लेकिन मेरे हिसाब से सर नहीं। क्लियर है? कोई इंटेंशन है सर? कोई बता सकता है? आई विल मोस्ट हैप्पी टू लर्न कि अगर कोई चीज ऐसी आपके दिमाग में आ रही है जो उनका व्यू है कि इट विल नॉट बी टैक्स्ड। जैसे इवन इफ यू गिव 1 करोड़ 85% नहीं, वो 15 भी माफ होगा। 15 एक्यूमुलेट कहां किया है? या तो लैंग्वेज चेंज करो। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, आप लोग कोई थ्रो कर सकते हैं कोई लाइट इस चीज में तो मुझे बता दीजिए, बट देयर इंटेंशन इज नॉट टू टैक्स दैट 15%. You are not giving 15% as a standard deduction. You are saying you accumulate, then we'll give you 15%. If you accumulate 5, we'll give you 5. If you accumulate 10, we'll give you 10. And if you accumulate more than 15%, 11 to दो, नहीं तो टैक्स दो. अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है सर, but this is going to be a big problem from next year. अब आगे देखिए, अमेंडमेंट कर रहा हूं. एक चीज मैं बता दूं, अगर 10B कोई आदमी हिम्मत करके बगैर एक्ट के रख के करके दिखा दे, उसका गुलाम हो जाऊंगा. मतलब एक्ट खोले बगैर 10B अगर कोई फॉल करके दिखाएगा, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा जिंदगी भर के लिए. एक्ट रख के नहीं होता तो एक्ट भी उसके बगैर क्या होगा. कोई भी 10B फॉर्म भर दे विदाउट कीपिंग द एक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, आई विल गिव हिम व्हाटएवर रिवॉर्ड ही वांट्स. हो ही नहीं सकता. मुझे फॉर्म तो भरना ही नहीं आता. मैं तो अपनी रिटर्न खुद ही नहीं भरता, मेरे को भरनी नहीं आती. भरनी आती मतलब फॉर्म तब नहीं बनाया है, लेकिन हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम हमें नहीं आता. इस उम्र में क्या सीखेंगे. वो कहते हैं कि 30 सितंबर तक क्यों इंतजार करते रहते हो, पूरा साल है, करते रहो. Up the form, and so many questions have been put to the board, sir. They are not giving reply. They will not give reply. They don't know answer. So they don't answer. Read 13(9) and 13(10). You will go back. Section 13(9) पढ़िए और 13(10) पढ़िए. कहिए ये क्या हो रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. एक तरफ आपने 12A उसमें BA में दिखा दिया कि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आप इवन 139(4) में डाल सकते हैं. रिटर्न डाल दिया आजकल. इस बार मैं अगले साल के इस बार आया है, क्या आप रिटर्न बिलेटेड भी होगी तो भी डिडक्शन 11-12 में मिलेगी. ये आ गया है, ये आ गया है. किस ईयर से आया वो देख लीजिए. लेकिन एक तरफ आप वो कह रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हो. ये कैसे कर होगा. यू आर सेइंग 12B सबसेक्शन 1 क्लॉज सबसेक्शन 2 पढ़िए. 2 ही है ना, 2AB वाला है. 12(1) नहीं 12(1)B, 12(1)AC नहीं, 12(1)B. 13(9) और 10 से कॉन्ट्राडिक्ट कर. क्या करो. अभी आ गया बिलेटेड रिटर्न भी भरेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगी. पहले कहते कि नहीं मिला, पहले तक मैं एक दिन भी नहीं लेट हो जाती नहीं भरती. फिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए. मैं क्या फिर 80G में जो 80I है वगैरह वहां भी लिख दो कि अगर रिटर्न लेट भरेंगे तो 80I है, 80IB, 80IC मिलेगा. अब गलती हो गई, सुनना नहीं है, मानना नहीं है किसी की बात. लेकिन आप देखिए 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज B में 139(4) दे दिया है, लेकिन सेक्शन 13(9) में वहां लिखा है ड्यू डेट तक भरना.
सेक्शन 1310 में लिखा है ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा, कैपिटल नहीं मिलेगा। ये कौन सा लॉ है, मुझे तो ये बता दो। क्या करूं मैं, कह रहा हूं किसी को कुछ नहीं आता, ना हमें ना उनको, लॉ तो चल रहा है। उनको आता होगा तो क्लैरिफिकेशन देंगे, उनको आता होगा तो क्लैरिफिकेशन देंगे। मेरे से पूछते रहते हैं, फिर कहते आप गलती बताते हो, मैं क्या करूं? We have nothing to do that. Do whatever you like. कर दो, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला भला करेगा। मैं क्या करूं सर? What can I do? I am telling you the problem which I am facing regular. I am not filing any return. सर एक इसका ऑर्डर करना है और 10B डालना है चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो नॉर्मल ऑडिट से 5 गुना फीस होगी। हम तफरी लेते थे, 5 गुना भी कम है सर। 3CD तो कुछ भी नहीं है, 10B फॉर्म भरना तो पागल हो जाएगा, और उसके साथ 3CD भी देना कैसा जरूरी हो जाए, 11(4)A हो तो। मुझसे सब पूछने लगे सर इसमें 194C, 194J, 194 क्यों लिखा है? लिखा है ना 194 क्यों? अरे ये क्यों लिखा है? ये तो बिजनेस के लिए होता है। 194 क्यों बिजनेस के लिए है ना, क्या वो TDS काटना है? मैंने कहा अगर 11(4)A का काम करेगा तो हो सकता है ना, या वो कोई खरीद रहा है तो भी तो हो सकता है ना। सो माय पॉइंट इज कि आपने यहां पर दोनों देने हैं, 194C, 194J, 194H, 194Q। अगर आपने TDS काटा है या उसने काटा है तो भी दे दें। अरे वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे सर कि सबका नाम देना है जो पर्सन इंटरेस्टेड है 13(3) में, है ना? शुरू में पहले पेज में दिया है 12 में कि जो पर्सन कौन है, ट्रस्टी, मैनेजर, और हु हैज मेड कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000, मैनेजर, फाउंडर, सेटलर, देना है ना। उनसे मेरे से सवाल पूछा, मैं 50,000 से ऊपर दे चुका हूं, मुझे अपना नाम तो मैं दे दूंगा, उसका मैं पूछ लूंगा, उसके रिश्तेदारों का नाम कहां से दूंगा? उस पर तो लिखा है रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन। तो उसके रिलेटिव नहीं हो सकते क्या? नहीं, फ्लैश पढ़ो तो सही, 13 माने क्या लिखा है? सर मैंने 50,000 का दे रखा है, मुझे मेरा नाम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। नीचे पढ़ो ना सर, लिखा है, मगर वो जो स्लैश जो रिलेवेंट है, जो ट्रस्ट के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और जो सोसाइटी है तो बोर्ड ऑफ काउंसिल, उसका डिटेल्स देने का नहीं सर। वहां पर वो भी लिखा है जो बेनिफिट 13(3) वाले हैं, 13(3) वालों की भी डिटेल मांगी है, 13(2) की भी डिटेल मांगी है। हाँ डिटेल्स मांगी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वो सर अलग है, तो आप कोई कॉलम है, आप कॉलम मिस कर रहे हो। वहां पर ट्रस्टी की भी डिटेल मांगी है, वहां पर रिलेटिव की भी मांगी है, 13(2) की भी मांगी है, 13(3) की भी मांगी है। 13(2) क्यों मांग रहे हैं फिर? 13(2) तो आर्म लेंथ है ना, और 13(3) है रिलेटिव, सबकी डिटेल मांगी है। फॉर्म देखिए तो सही, देखने का दिल ही नहीं करता, देखेंगे कहां से? हमारा तो दिल करता नहीं। इतना 18 पेज का फॉर्म है सर, 18 पेज फॉर्म, और छोटा छोटा लिखा हुआ है। पहले तो चश्मा लगवाना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज तो नजर ही नहीं आता है मुझे। सो मेरा पॉइंट ये समझ में आया सर कि इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल है। क्या नहीं मांगा उन्होंने? एक्ट का सारे सेक्शन खोल लो, 11, 12, 13 और 10, 23, सबकी डिटेल वहां देनी, एवरीथिंग, एवरी सेक्शन की डिटेल वहां मांगी है। क्या मूवेबल प्रॉपर्टीज की कॉस्ट सब मांगी है, वो कैसे मूवेबल प्रॉपर्टीज की कॉस्ट कैसे निकाली जाए सब? सम ट्रस्ट आर हैविंग, वो कह रहे हैं कि मैंने दान दिया 50,000, मेरे रिलेटिव की मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा? वो कह रही है भी है। 500 assets might be there with the big trust, movable property, and they are सर asking for सर मैं डिपार्टमेंट से नहीं आया जो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं तो आपके साथ ही भरा पड़ा हूं। मैं ये कहता हूं कि सब ये बढ़ने में कितना, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र ने कराया, वहां पर IRS आए हो, मुझसे जो एक्ट पकड़ा सारा लिख दिया प्रेड बी में, विदाउट रियलाइजिंग कि प्रैक्टिकल कितना डिफिकल्ट है। थियरी में लिखना तो कर दिया आपने, क्या करा है? एंड वो गाली देता सीए को, और खुद सीए। मैं तो कह दिया, मैंने कहा सब शर्म करिए, आता रहता मेरे में ऐसे, मैं कहा शर्म कर, कम से कम बोल मत अपने जबान से कि सीए ये क्या करते, सीए को कुछ नहीं आता। मैं तेरे को क्या आता है, तूने 8-10 गलतियां करी IRS होके भी, लेकिन समझ में नहीं आती। वहां पर बैठ के ना कुर्सी पे दिमाग घूम जाता है। मोदी साहब सो कहने से कुछ मोदी साहब के पास कहां टाइम है? मोदी साहब ने तो IAS और IRS को पूरी पावर दे रखी है।
इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। वो सुनते ही नहीं किसी की बात। उनके पास पूरी पावर है, IRS कुछ नहीं। पहले तो एक था, मेरी बात सुन लेता था, इसलिए सब में जाता था, सब खड़े हो जाते थे। अब वो जो आ गई है, मेरी उससे बनती नहीं है, तो क्या करूं? किसी की भी नहीं बनती, मेरी क्या है? सर प्रॉब्लम बहुत है सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है। ये तो भी चैरिटेबल ट्रस्ट की सिर्फ जो मर्जी ले लो सब में है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट में तो प्रॉब्लम ही और कुछ है ही नहीं। इंडिया में कितना चैरिटेबल 20 लाख 30 लाख होंगे, ज्यादा भी होंगे। जी हाँ है, अब कम हो जाएंगे, लेकिन टीडी भरने के बाद तब भी नहीं है उनका पैसा, तो कम क्या होंगे? जब पैसा तो उनका है ही नहीं, टीडी क्या? जब उनका टीडी में भी भर देंगे तो पैसा नहीं होगा, वो डोनेट कर देंगे दूसरे। क्या करे? वैसे मिसयूज भी बहुत हुआ। ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहता नहीं है कि ये चैरिटेबल में जाना, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है अगर उसके बगैर चैरिटी के वो इंस्टीट्यूट को खोलना। अदरवाइज दे डोंट वांट, दे रियली डोंट वांट। क्यों बात कर चैरिटी करे इतनी? वो जब से श्री नोबल एजुकेशन सोसाइटी, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के, वो तो मर गए, वहां पर प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, करे क्या रहे हो सर? ये तो प्रॉब्लम चली आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनके दिमाग में एक ही है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बहुत तंग करते हैं, और उसके पीछे है कौन? 90% पैसा पॉलिटिशियन का लगा हुआ है, 90%। सबको पता है, सबको पता है। अब मैं क्या बोलूं? वही लॉ बनाते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं क्या कर सकता हूं सर? कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर भी लोगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आई कैन स्पीक। हाँ जी, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर 50,000 के ऊपर जो दान दिया उसको सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर कहते हैं। अगर एक इंसान ने 5 साल करके एग्रीगेट है वहां, एग्रीगेट, हाँ 5-4 हजार से ज्यादा। और कब का आया हुआ है? हमने लिख के दिया था 50 लाख कर दो, सुनते ही नहीं है। मैं क्या करूं? ड्यूरिंग द ईयर नहीं है ना एग्रीगेट है, पिछले साल का मिलाकर मैंने 2-2 हजार करके 50,000। हाँ, वो कौन रिकॉर्ड रखोगे उसका कि पिछली बार भी आता रहा? कल निकाला कोई ना, ये साल मैंने 25,000 दिया, अगले साल 25,000 सर एग्रीगेट है सर, हो गया ना? हाँ हो गया। यू आर राइट, पढ़ लो, उसमें लिखा है 13(1) में, पढ़ लो सर, पागल हो जाएगा वो। I fully agree with you, sir, but my point again वही आ जाता है, किसके हैं ये इंस्टीट्यूशंस? मैं बताऊं, अब आपको कहानी सुनानी पड़ती है, कहेगा कहानियां सुनाते हैं और तो कुछ करते ही नहीं है, पढ़ाते तो ही नहीं। सुनिए, जब 1 करोड़ का 5 करोड़ हुआ ना, मुझे हर बार बुलाया जाता था पार्लियामेंट में आफ्टर द बजट। ये एमपी बैठते थे, इनको जरा बताओ क्या चेंजेस आई बजट की। मैं यही सोचता था, इनको क्या बताऊं? इनको कुछ आता होगा तो बताऊंगा। अब उस साल पे 1 करोड़ का 5 करोड़ हो गया। बोले कहते इनको बताओ। मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है। मैं कहा जी आपको बहुत खुशी होगी ना, 1 करोड़ हैज बीन रेज्ड टू 5 करोड़ फॉर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी। थोड़ी बड़ी तालियां बजी। मैं कहा समझ में आ गया अब इनके, इन्होंने कराया है। 1 करोड़ का 5 करोड़, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अकाउंट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, और सब कुछ अलाउड है। मैंने कहा इनकम टैक्स को बेवकूफ मत समझो, उन्हें 2 चीजें चेंज कर दी। कहते क्या? एग्रीगेट कर दिया, हाँ एजुकेशनल और मेडिकल मिलाकर 5 करोड़। कर कोई बात नहीं, हमारे तो सिर्फ एजुकेशनल ही है। वो कहता हमारे तो मेडिकल ही है। मैंने कहा एक और चीज कर दी, पहले एक ट्रस्ट होता था, उसके नीचे 5 इंस्टीट्यूशन है, ई या 10 है, हर एक का 1-1 करोड़ है। अब ट्रस्ट का 5 करोड़ है, सो यू हैव टू डू दैट। कहते कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतलब लॉ वही बनाते हैं, वहीं पे जाकर आता है, तो हम क्या करेंगे सर? What can you do? ये 1023C उन्हीं की वजह से रखा हुआ है, उन्हीं की वजह से रखा हुआ है। 5 करोड़ से नीचे वाले काम करा लेते हैं। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, अलग अलग ट्रस्ट खोल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब चलिए सर, और कोई बताइए, और कोई चीजें बताइए। बिल्कुल टाइम भी मेंटेन करना है, इसलिए 20 मिनट है, क्योंकि 11 बजे दिया, 1.5 घंटे का मेरा है, तो 20 मिनट है। तो जो मर्जी पूछ लीजिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। अभी जो मैंने कह दिया, इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ भी पूछ लीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट, 10B 10BB कुछ भी कर लीजिए। 10B मैं पहले बता रहा हूं, जिसकी 5 करोड़ से ऊपर है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, उसको 10B तो भरना ही पड़ना है, चाहे वो कुछ कह दे। 10B उसमें वो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं 10B इज मोस्ट डिफिकल्ट। अभी तो कईयों ने देखा ही नहीं,
जब देखना शुरू कर दीजिए दफ्तर जाना ही छोड़ देंगे कि ये क्या है। चलिए सर और पूछिए, कोई पूछ ले तो, जो भी पूछना है। हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए। देखिए किताब रख के जो आता है ना, मुझे बड़ी घबराहट होती है, पूरी किताब के सामने पड़ी है, मैं क्या बोलूं। चलो बोलिए 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 सर बोलिए। So the religious trusts are receiving some gold ornament which are not adornable to the deity, sir. वेरी गुड। उसको तोड़वा कर उसके गहने बनवा लीजिए, भगवान का मुकुट बना लीजिए, अप्लाइड हो गया। नहीं, whether these ornaments are required to be liquidated before the end of the subsequent year. one minute, मैं वही बोला। आपको कोई मंदिर को घी दे जाता है, चावल दे जाता है, ये दे जाता है, काइंड में आया, यू अप्लाइड, डन। आपको कोई ज्वेलरी दे गया, आपने भगवान को ज्वेलरी पहना दी, अप्लाइड। मगर सुन तो लीजिए ना मेरी बात को पूरी, अप्लाइड, चाहे साल में एक बार पहनाए चाहे कितनी बार पहनाए। लेकिन अगर वो गोल्ड बिस्किट दे गया तो भगवान कैसे पहनेंगे गोल्ड बिस्किट को? या तो कन्वर्ट कर दीजिए 11 उसको भगवान को पहना दीजिए, नहीं तो कन्वर्ट कीजिए 11.5 में। ये लो है before the end of the next year. Yes, 1 year from the end of the year in which it is received. अभी तो और भी इशू है सर, पहले ये समझ में आ गया कि गोल्ड बिस्किट अगर आ गए तो भगवान पहन नहीं सकता, तो उस केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑर्नामेंट में, चाहे एक दिन पहना दे। सब यही करते हैं। वहां बैठ के मैंने दो उन्होंने भी पूछा था मेरे से वहां बालाजी पे, तिरुपति बालाजी यही कहा। और अभी पूछ रहे हैं मेरे पास, वो नाम नहीं लूंगा, पीताम्बरा देवी वाले, वो भी पूछ रहे हैं कि हमारे पास इतने पड़े हैं। मैंने कहा गोल्ड फॉर्म में। उन्होंने क्या किया, ज्वेलरी दे जाता है, कोई 14 कैरेट की है, कोई 18 कैरेट की है, कोई 20 की है, कोई 24 की है, कोई वैसे ही नकली है, तो उन्होंने सबको गलाकर 24 कर दिया। कहते इसका क्या होगा? मैं कहीं कर ही नहीं सकते, इसके तो ज्वेलरी बनाओ, चाहे भगवान के कंगन बनवा लो, कुछ बनवाओ, लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा। But if those are not converted into 11.5 mode before the end of the next year, what would be the consequences in the third, fourth year? That means it is you are not following the 11.1D, 13.1D. 13.1D में exceptions है ना? But no income is arising from it, from the ornament, sir. Sir. You have received donation in kind. It is a donation. Correct. It is a donation in kind. It's in kind. That donation has to be kept under 11.5. नहीं तो टैक्स लग जाएगा, उसको इनकम मान लेंगे। But the 13.1D provides that if any income, so much of the income, so much of the so वो इनकम ही तो थी पहले, आपने उसका इनकम आई है तभी तो आपने एक साल में कन्वर्ट करना है। पुराने पड़े हैं तो वो गलत तो किए हुए आपने। देखिए ये तो लिखा है कि आपके वो जो नीचे डी लिखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपका कोई शेयर नहीं होना चाहिए, वो नॉन एप्लीकेशन मान जाएगा डोनेट दोगे तो। हमारे पास शेयर आए पुराने पड़े, अब मैंने शेयर को लिक्विडेट नहीं किया, if I donated to other, it is accumulated wealth donated, no problem, no application, that's all. Yes, sir, another option which I am thinking, sir, that if it is not liquidated before the end of the next year, say it is liquidated in the 4th year or 5th year, whatever capital gain that may arise, that may be treated as 115 BBI income. Is it possible, sir? Sir, आप जो capital gain कह रहे हैं उसमें तो 11(1)A भी लग सकता है। Why 115 BBI? 11(1)A में आकर आप कुछ और उसमें जमा कर दें। 11(1) दे रहे हैं ना कैपिटल गेन के बारे में। 13(1)D would supersede this. 13(1)D इनकम की बात नहीं करता, इनकम ऑफ द पीरियड है, वो पिछले सालों का जो भी है उसको एक साल में करना ही करना था, नहीं तो अगले साल लग ही जाना है। वो तो अगले साल लग ही जाना है, वो तो लिख रहा है सर कि अगर अगले साल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये आपने 13(1)D लग गया, उससे जो इनकम से तो करा था आपने। द डोनेशन इन काइंड इज एन इनकम, एम आई राइट और रॉन्ग? And if it is not converted, let us see it will be done. हाँ जी। 13(1)D में सब इनकम कितनी गिने जाएगी नेक्स्ट ईयर? सारा जो डोनेशन आया, अमाउंट ऑफ डोनेशन, नॉट द एप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डोनेशन। हाँ जी, हो गया। ये होता है तरीका। उठा लो अपने पास, कर लो जो करना है मेरा। उन्होंने उठा लिया, चलिए अभी तो 15 मिनट थे यार, ये तो गलत बात है। करना है आपको? अच्छा, वो इनको कहाँ से हटा दिया है? पूछिए सर, और कोई पूछना हो तो। सर एक और वही आ रहा था, कॉर्पस डोनेशन अगर आप सेपरेट नहीं रखेंगे तो मारे जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वहां जाके पूछा, लिखा है कॉर्पोरेट डोनेशन शुड बी मेंटेन्ड इन सेपरेटली इन ए अकाउंट, ठीक है ना?
अगर कॉर्पोरेट डोनेशन काइंड में आ गई तो क्या करूंगा? मुझे तक अभी तक जवाब नहीं दिया। आई हैव रिसीव्ड कॉर्पस डोनेशन इन काइंड। अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 11.5 हो गया। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपने तो ये लिख दिया शुड बी रिसीव्ड एंड मेंटेन्ड इन 11.5। तो कैसे मेंटेन करूंगा 11.5? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है सर वहां पर। कॉर्पस डोनेशन इन कैश तो ठीक है, मैं 11.5 में डाल, और 90% लोगों ने उसी बैंक अकाउंट में रखा है, बिल्कुल माफ नहीं होगा। आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में कॉर्पस डोनेशन रखनी पड़ेगी और उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। लिखिए 11.5 देखिए मेंटेन्ड, देखिए देखिए सर देखिए 11.1D, ये सर 11.1D मैं कह रहा हूं। हाँ पढ़िए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो पढ़िए 11.15 11.1D। हाँ जी हाँ जी पढ़िए। Subject to the condition that such voluntary contributions are invested or deposited in one or more of the forms or modes. 11.5 Specifically, in subsection 5, maintain specifically for such purpose. हाँ मेंटेन स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। Means account बैंक account अलग थोड़ा होना चाहिए। सर बिल्कुल अलग होगा। अगर जनरल में आप खत्म कर रहे हैं तो आपको हिसाब कैसे रखेंगे? मेंटेन्ड फॉर दिस पर्पस, यू विल हैव टू मेंटेन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। फॉर्म में भी लिखा है सर, ये पहला ऐड हुआ है, लास्ट वाला सर पीछे अमेंडमेंट आई है ना सर। नहीं, ये जो सब है ना, जो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज में क्या है कि आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड, तो इन वन और मोर फॉर्म्स। इस साल से ये होगा, पहले सालों में नहीं होता था। ये अमेंडमेंट इस साल से आई है। इस पर्पस का मतलब है जब इस डाल के बाद में आएगी आपको 11.5 में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये सर, ये सर। चैरिटेबल ट्रस्ट है, सारे क्वेश्चन एक ही जगह से ले रहे हो। चलिए। हाँ, the trust has spent more than the income. The trust has spent for the object more than the income which is received during the year. In fact, in profit and loss account there is a deficit. So that is to excess expenditure that is to be treated from. वो तो corpus से use किया है। हाँ, so then how can I maintain the balance and corpus deposit? सर मैंने उसने लिखा है देर यू पहले जमा करा दो फिर उसको खर्च कर लो। मैं कॉर्पस का अगर खर्च करता हूँ तो उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, यही तो कहा है। लेकिन ये भी कहा है फ्यूचर ईयर में यू इन्वेस्ट बैक, you pay back to the corpus, we will treat it as an application. Is there an accounting entry? 11.1D में पहले तो exempt हो गया अगर आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद अगले दिन खर्च कर लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन नहीं। लेकिन अगर एप्लीकेशन लेना चाहते हो तो सब्सिक्वेंट ईयर में whether accounting entry, but whether accounting entry is necessary for the purpose of audit, for that this reduction from corpus and then once again तो आपको रिटर्न में भर के देना है कॉर्पस का आया कितना, खर्च कितना किया, कितना वो री इन्वेस्ट आया, पूरा फॉर्म भर दिया उन्होंने। कहाँ से पैसे आए, कहाँ से आए लिखा है सब कुछ, ये लिखा है। that is in form, but I am talking about the accounting entry. अकाउंटिंग एंट्री भी करनी पड़ेगी। हाँ, अब यही प्रॉब्लम आ रही है अकाउंटिंग एंट्री में, आपने यहाँ रखा, अब ये उसको आपने खर्च कर दिया, एप्लीकेशन कर दी, तो अमाउंट तो कॉर्पस में क्या करूं, कॉर्पस में से लेस करूं कि राइट साइड में। that is the अब बात को समझ में आ गया कि मैं कॉर्पस से लेस करूं या राइट, या तो ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो ये कॉर्पस है ये इसका खर्चा है, नहीं तो वहां से लेस कर दो, हम कोई माना थोड़ी कर। अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन डिडक्ट फ्रॉम द कॉर्पस ऑल्सो दैट यू आर यूजिंग इट, बट इट विल नॉट बी एप्लीकेशन। लेकिन जब दोबारा वापस आएगा तो फिर इसको ऐड कर देना। दोनों ऑल्टरनेटिव है आपके पास, दोनों ऑल्टरनेटिव। If there is a debit balance in excess of expenditure, then will it be suffice? डेबिट बैलेंस तो लगना ही नहीं, वो तो लिख दिया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। ना that is okay, but ये डेबिट बैलेंस तो ये कॉर्पस से यूज किया, डेबिट बैलेंस कहाँ से हो गया? जो कॉर्पस accounting entry we are talking about accounting सर entry. अकाउंटिंग एंट्री तो बहुत कुछ की डिफिकल्टी है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन शो कॉर्पस हियर एज ए बैंक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कॉर्पस को फंड में ले लो, लेकिन आपने यहाँ से खर्च किया तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक बैलेंस कम करो, कॉर्पस कम करो, दोनों तरह शो कर दो। मैं क्या करूँ, दे तो दिखाना कैसे, कैसे रहेगा, कॉर्पस तो कॉर्पस नहीं रहा, फिर ऐड कर दो। आप इसको रिमूव क्यों कर रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, ये तो सीधा कॉर्पस से यूज करो,
That should not go to income and expenditure account. If you So have that spent on the accounting corporate. treatment is should be given. Yes, वो तो वो उनको आता नहीं है, उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता, वो तो मुझे क्या पता, और मुझे नहीं पता चिंतन पटेल जी से पूछिए कि वो एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नहीं है, मुझे नहीं पता। वैसे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते किसको है? यहाँ तो बता दे किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे आते हैं या फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद, चलिए सर। कुछ नहीं होगा, वो का एप्लीकेशन नहीं है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट इफ डोनेटेड इफ अप्लाइड इज नॉट एन एप्लीकेशन। अरे 15% वाला ही तो है आपके पास, तो 15% वाला खर्च कर दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक्यूमुलेटेड से खर्च किया ना, करंट ईयर का खर्च करना है ना सर, एक्यूमुलेटेड तो करते रहो, एप्लीकेशन नहीं है। आर यू स्पेंडिंग आउट द करंट इनकम और द ओल्ड इनकम? ओल्ड इनकम है तो वो कोई खर्च थोड़ी है। एक्यूमुलेटेड से जो भी खर्च करें या डोनेट करें वो एप्लीकेशन नहीं है। You have to spend from the current income. Accumulated पड़ा रहने दीजिए, वहां से खर्च करेंगे तो डेफिशिएंट मिलेगा नहीं, बात खत्म, एप्लीकेशन नहीं है। That is not an application. क्योंकि आपको 15% जब ऑलरेडी मिल गया तो दोबारा थोड़ी दे देंगे एप्लीकेशन। You have already taken benefit of 15% earlier, and if you spend that 15% which is accumulated, should you get an application for that? No, it is already done with you. Double deduction कैसे ले लेंगे? नहीं मिलेगा। हाँ तो सारा देना पड़ेगा, जितना दे दीजिए वो उतना उतना अलाउड है। सिमिलर ऑब्जेक्ट यू कैन डी, वो तो 115 TD की तीसरी क्लॉज में लिखा हुआ है, यू डोनेट टू अदर ट्रस्ट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड। ये डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है 90 दे दो, डिसॉल्व होगा। अगर आपने पार्ट दिया तो वो तो आप एक्यूमुलेटेड वेल्थ दे रहे हैं, वो एप्लीकेशन वैसे ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप उसको कॉर्पस लिख के देंगे तो कॉर्पस है क्या? पहले कॉर्पस था कहाँ? अगर आपका जनरल फंड था तो कॉर्पस थोड़ी है सर, जनरल फंड कॉर्पस नहीं होता, कॉर्पस का तो कॉर्पस फंड ही होता है। अब तो अलग करके रखना है, ये जनरल है ये कॉर्पस है, पहले तो कभी सोचा ही नहीं था कभी। यू हैव टू डू इट सेपरेटली, दिस इज फॉर जनरल कैपिटल फंड, दिस इज कॉर्पस फंड। डोनर कहता है कि मैं कॉर्पस डोनेशन दे रहा हूँ, आप डोनेशन दे ही नहीं सकते, कॉर्पस अलाउड ही नहीं है, लॉ में लिख दिया है that you cannot make a donation to other as a corpus. If you do it, it is not an application. एप्लीकेशन नहीं है, दे दो सर। जब डोनेट कर रहा है तो एप्लीकेशन नहीं है, दे दो सर। मेरा 15% एक्यूमुलेटेड था, मैं दूसरे को देना चाह रहा हूँ, दूसरे ट्रस्ट को। नहीं सर, वो तो उसमें ऑलरेडी डेफिनेशन सेक्शन 11(2) के नीचे लिखा हुआ है कि आप एक्यूमुलेट के वो डोनेट नहीं कर सकते, करेंगे तो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। कर दीजिए, मना थोड़ी कर रहे हो, एप्लीकेशन नहीं है वो। आप एक्यूमुलेटेड वेल्थ, अगर एक्यूमुलेटेड इनकम को डोनेट करेंगे तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट अलाउड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। जैसे करंट से किया तो 85% एप्लीकेशन कह दिया, पहले 100 मिलता था, ओल्ड से किया तो दे सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं। मैं एप्लीकेशन गिनना भी नहीं चाह रहा हूं, नहीं, आपका गिन क्या लोगे? जब है ही 15% ले चुके हो तो दोबारा थोड़ी ले लोगे। अलाउड 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 हो गया सर। एनी अदर? अभी है, हाँ, रिगार्डिंग रिलीजियस ट्रस्ट अगर कैश डोनेशन कितना ले सकता है? रिलीजियस कैश डोनेशन कैसे ले सकता है? कितना ले 2 लाख रुपया पर डे पर पर्सन। बट इन रिटर्न डिटेल हैज टू बी गिवन। अरे वो 2000 ATG के लिए, वो ATG के लिए 2000 से ऊपर नहीं ले सकते, तो रिलीजियस ट्रस्ट को तो ATG मिलता ही नहीं है। हाँ, कहाँ लिखा है सर? कहाँ लिखा है? रिलीजियस ट्रस्ट में कहाँ लिखा है 10,000 रुपए? भगवान को तो कच्चे का ही आता है, नाम ही नहीं पता हमें कहाँ से आया, करोड़ों रुपया आता है। कहाँ लिखा है? अनोनिमस भी नहीं है वो, अनोनिमस भी नहीं है तो कहाँ लिखा है? वो ATG के लिखा है 2, पहले 10 होता था। आप भी पुराने हैं मेरे जैसे, 2000 हो गया वो, 10 का 2 कर दिया हुआ उन्होंने ATG के लिए। तो ATG को तो बोल ही नहीं रहे वो, रिलीजियस को तो ATG मिलता ही नहीं है, वो तो गलत ले रखा है। ये या इट इज नॉट रिलीजियस किसी दे दीजिए, आपको कोई मना नहीं। 2 लाख रुपए था, 269 ST लगता है ना, 269 ST ले ले, गिफ्ट भी तो आप 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। ये कहाँ लिखा है? उन्हें डिडक्शन देने के लिए लिखा है 2000 से ऊपर नहीं मिलेगी, डिडक्शन देने के लिए लिखा है, लेने के लिए थोड़ी लिखा है।
कहाँ लिखा सर? आई कैन रिसीव अप टू, आज मैं इनकम, आई एम डूइंग इट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन एटीजी नहीं ले रहा तो भी ले सकता हूं मैं, उसको एटीजी नहीं लेना, मैं ले लूंगा 2 लाख तक। आई कैन नॉट रिसीव मोर देन 2 लाख बिकॉज ऑफ 269 ST। देने वाला 2000 से ज्यादा देगा तो उसको एटीजी नहीं, बस खत्म। देने वाला और है, लेने वाला और है। हम लोगों के दिमाग में वो 2000 याद आ जाता है, पहले वो 10,000 याद आ रहा था। वो ना 2 है ना 10 है, 2 लाख रुपया है 269 ST रिसिपिएंट के लिए। रिसिपिएंट वो को एनोनिमस नहीं माना जाएगा। अगर मैं वो प्रूफ दे दूंगा, उसका नाम एड्रेस वगैरह दे दूंगा तो एनोनिमस नहीं है, लेकिन वहां पर एटीजी नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। सर हाँ जी, कोई छोटे गांव का मंदिर का रजिस्ट्रेशन 12 सारे मंदिर गुरुद्वारे टैक्सेबल हैं, पूरा ग्रॉस रिसीट, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 56(2)(10) सेज कि अगर डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उसको मिलेगी तो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई गुरुद्वारा, मंदिर, ट्रस्ट जो भी है, अगर वो रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड नहीं है, 50,000 रुपए से ऊपर एग्रीगेट अमाउंट, वेदर फ्रॉम 1 पर्सन और मोर देन 1 पर्सन, पूरा का पूरा ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल है। 1 रुपए का खर्चा भी अलाउड नहीं। पहले खर्चा अलाउड होता था 1/4/2017 से पहले 56(2)(7) में, क्योंकि पहले 56(2)(7) सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए था, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं था। अब तो 56(2)(10) तक, वेयर एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन सम एक्सीडिंग ₹50,000 विदाउट कंसिडरेशन, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मेरा इश्यू अलग है, उस मंदिर का कोई इनकम नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो 115 TTD एप्लीकेबल कभी होगा? रजिस्टर्ड ही नहीं था तो उसने एग्जेम्पशन का लिए जो 115 TD होगा, लेकिन जो भी इनकम आएगी आगे से टैक्स होगा। जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो 115 TD कहां से पैदा हो गया? लेकिन वो तो शुरू से ही टैक्सेबल है। वो तो 1/4/2017 के बाद मैंने हाथ जोड़कर विनती करी थी सबको रजिस्टर्ड करा लीजिए, उन्होंने कराया नहीं है, तो ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल है। कहेगा मंदिर के पुजारियों को खर्चा देते हैं, वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां वो करते हैं, कुछ अलाउड नहीं है। टोटल डोनेशन की बात कर रहा हूं, टोटल डोनेशन इज टैक्सेबल इफ इट इज मोर देन 50,000 वेदर रिसीट फॉर 1 पर्सन। मैं गया था, सर कुछ तो रिलैक्स कर दो, कहते उनको को अप्लाई कर दो, हो सकता है मैं पुराना पूछे ना, भाई इससे ज्यादा वो कुछ नहीं हिंट दे रहे। ये जितने भी मंदिर गुरुद्वारे गली गली में हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर ऑल टैक्सेबल। पता तब लगता है जब 10 लाख से ऊपर पैसे जमा कराते हैं बैंक में, तब नोटिस आ जाता है ना, अदरवाइज क्लियर है सर। और भगवान को कोई छेड़ता नहीं है, हिम्मत वो भी नहीं कर, वो भी तो दे के आते हैं। चलिए हाँ लास्ट है सर, क्योंकि 12:30 बज गए, लास्ट। आपको लिखना पड़ेगा आभूषण के लिए, आपको लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ये है, हाँ 11/5 में दे दीजिए, 11/2 में दे दीजिए, लेकिन जब दोगे तो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए एप्लीकेशन है, क्या बनाना? आभूषण भगवान के लिए बनाना, लेकिन बुलियन खरीदना एप्लीकेशन नहीं। वो बुलियन तो बिक नहीं सकता ना। हाँ अगर आप सोने के सिक्के के उसका हार बना के भगवान के पहना दें, हमें क्या दिक्कत है? हम तरीके तो हम बता देते हैं, लेकिन दिक्कत ये बिस्किट मत पहनाना, सिक्के पहना देना। चल ये तो चलता है सर। करोड़ों रुपया उसके पास पड़ा है, वो अपने साईं बाबा मंदिर में, उनके पास सोना ही पड़ा है, कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन लीगली गलत है। लेकिन साइंस ये कर रहा है, मुसीबत किसको आनी है? 10B जो साइन कर रहा है, ये दिक्कत आएगी सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग सर, थैंक यू सर।